Good morning, students. Today we will discuss on your first unit of your syllabus, Basics of Internet. In this chapter, we will learn introduction of Internet and what are the terms of Internet and how Internet work. Dear students, already you all know that Internet is the globally connections of computers. Those are interlinked to each other by the help of telecommunication lines. Also, you can say that source of information and network of network. Internet has provided an important medium to share the knowledge and stay in touch with each other anywhere in the world. And also we can say that Internet is the quickest and easiest way of communication with others. You can use email to share the informations, pictures, videos, etc. over the internet. Means basically इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, चाहे वो पिक्चर के फॉर्म में है, वीडियोस के फॉर्म में हो, किसी फॉर्मेट में हो इंफॉर्मेशंस, और उन इंफॉर्मेशंस को हम बहुत ही आसानी से एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सर्विसेज. रिमेंबर दोज डेज व्हेन यू हैव टू वेट फॉर आवर्स इन अ लॉन्ग क्यू टू डिपॉजिट और विड्रॉल मनी फ्रॉम द बैंक. एक समय वो भी था जब लोग घंटों लाइन में लगे रहते थे, तब जाके उनका मनी डिपॉजिट होता था या विड्रॉल होता था. टिकट आप लेने जाते थे ट्रेन वगैरह की, एयरलाइंस वगैरह की, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी रश का सामना करना पड़ता था. तो वहाँ पर मनी भी लगता था और उसके साथ साथ टाइम भी वेस्ट होता था. बट जब से इंटरनेट टेक्नोलॉजी से लोग जुड़ गए हैं तो यू आर सेविंग टाइम एंड मनी बोथ. नाउ फ्यू अदर important services of internet, those we are using day by day. The number one facility is e-learning. E-learning कि हम घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि वी आर शेयरिंग वीडियोज़, वी आर शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, वी आर शेयरिंग एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल मटेरियल्स टू यू. नाउ e-governance, when government transactions are completed by using internet technology are called e-governance. तो गवर्नमेंट के कोई भी काम आप घर बैठे हो जा रहे हैं तो किस कैटेगरी में आएगा? ई गवर्नेंस के फॉर्म में आएगा. नेक्स्ट फैसिलिटी इज ब्लॉगिंग. ये भी मोस्ट पॉपुलर फैसिलिटी है ब्लॉगिंग. तो ब्लॉगिंग आर द वेब स्पेसेस, दोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, वेयर वी कैन सेव own opinions, own informations free of cost, and we can display publicly also. And very big example of internet nowadays, online shopping. You can take the example of Amazon, Flipkart. इस तरह की बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको फैसिलिटेट कर रही हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए. And other is social networking. By using this service, the whole countries are linked to each other. By example, Facebook, Twitter are the example of social networking. अब जैसा कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो इसको समझने के लिए कि कैसे काम करता होगा,
किस तरह से चीज़ें इतनी आसानी से हो जा रही हैं, लेकिन नहीं, इसके पीछे बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एक साथ काम कर रही हैं, तभी ये आसानी से हो पा रहा है। तो इसकी फंक्शनैलिटी को समझने से पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? तो व्हेन two or more computers are linked to each other and they can share information, they can share resources, are called network. तो जब कभी भी दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, तो वो भी नेटवर्क कहलाएगा। और जब पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपका नेटवर्क ही कहलाएगा। So networks are basically categorized in 3 parts, जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आए होंगे। LAN, WAN, MAN. LAN means local area network. WAN means wide area network. MAN means metropolitan area network. So LAN network means a kind of network which work on local areas, like in a building, in a limited area, within the room, within the computer lab, within the cyber cafes. So these are the example of LAN network, those working in limited areas. What are the means of MAN? Metropolitan area network. It is a specific network which work in given specific range, एक स्पेशल रेंज में, स्पेसिफिक रेंज में ही वर्क करता है। तो मैन टाइप नेटवर्क्स आर यूज्ड बाय आवर मिलिट्री। सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आवर आर्मी। तो आर्मी की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो कभी कभी ऐसी जगहों पहुंच जाती हैं जहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, अपने लिए एक मैन टाइप नेटवर्क को डेवलप करते हैं, ताकि जो उनका हेड ऑफिस रहे, जहाँ पर उनकी ट्रूप ड्यूटी कर रही है, वो सब चीज़ें आपस में एक लिमिटेड एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में जुड़े रहें। इसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसका यूज़ हम शहरों में भी देख सकते हैं। केबल कनेक्शंस ऑफ योर सिटी आर द एग्जाम्पल ऑफ metropolitan area network. And last is MAN. WAN, wide area network. It is a very, जैसे नेम से पता चला, वाइड एरिया नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत बड़े साइज में हो। तो बेसिकली WAN is the collection of LAN networks. When small LAN networks comes together and make a WAN, wide area network. And we can take the example of WAN is internet. Internet technology is the example of wide area network. Now, what are the कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट नेटवर्क? कि एक इंटरनेट नेटवर्क को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें TCP/IP की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। TCP/IP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस इज द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। और इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का रोल होता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना। विदाउट दिस टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट इमेजिन नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर्स। सो TCP/IP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल नेटवर्क, चाहे वो LAN टाइप हो, चाहे WAN टाइप हो, चाहे आपका इंटरनेट ही क्यों ना हो। अनदर डिवाइसेस आर यूज्ड लाइक modem. Modem is a special device which demodulate the rays. जो इंटरनेट डेटाज हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। जब वो किसी मीडियम में फ्लो कर रहे होते हैं तो उनका जो
सिग्नल टाइप होता है वो एनालॉग टाइप होता है, लेकिन जब वो सिस्टम में कंप्यूटर में आ जाते हैं तो उनका फॉर्मेट डिजिटल टाइप हो जाता है, बिकॉज कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस, इट ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल सिग्नल्स। तो मॉडेम यही काम करता है कि जब उसको सिग्नल्स मिलते हैं, उसको डेटाज मिलते हैं, इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, तो उन पाई गई इंफॉर्मेशंस को, जिसको उसने एनालॉग फॉर्म में पाया है, उसको डिजिटल में चेंज कर देता है ताकि वो कंप्यूटर उसको आपके सामने शो कर सके। इसी तरह से जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में जाती है, तो बीच में जो डिफरेंट वायरलेस कनेक्शन है, वायर्ड कनेक्शंस हैं, उसमें आपका डेटा फ्लो करेगा एनालॉग फॉर्म में, तो वहाँ पर भी मॉडेम आपकी हेल्प करता है। इन दिस वे वी कैन से दैट इट विल डीमॉड्यूलेट द रेज एज पर रिक्वायरमेंट। जरूरत पड़ने पे ये डिजिटल में कन्वर्ट करता है और जरूरत पड़ने पर डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है ताकि दोनों मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन होता रहे। अदर डिवाइसेस, router is a small device that can join multiple network to each other। मल्टीपल नेटवर्क को एक साथ जोड़ना हो, जैसे मान लीजिए LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, there are 4 LAN type network and you want to interconnect to each other, so we can use routers। Other device is repeater means इट विल एम्पलीफाई द सिग्नल्स। कभी कभी होता क्या है कि जैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ा गया और वहाँ पर एक नेटवर्क के दूसरे नेटवर्क की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, लिमिट से बाहर है, तो उस केस में जब सिग्नल्स या इन्फॉर्मेशंस यहाँ से जाएंगी दूसरे नेटवर्क में, तो उनकी फ्रिक्वेंसी कम होने लगती है और वो उनके जो बिट रेट्स होते हैं फ्रिक्वेंसी के, वो डाउन होने लगते हैं और आपका सिग्नल वहीं पर वीक हो जाता है और प्रॉपर डेस्टिनेशन तक सारे सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं। तो जहां पर आपके सिग्नल वीक हो रहे हैं, वहां से उन सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ता है, उनकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना पड़ता है, तो वहां पर रिपीटर आपकी हेल्प करेगा। रिपीटर विल एम्पलीफाई द सिग्नल और वहां से वो सिग्नल आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ इंटरनेट वाज डेवलप्ड। किसने उसको डेवलप किया था, किसने डेवलप किया था उसको? तो इन द ईयर ऑफ 1969 DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA, तो उनको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट पड़ी कि ऑन दैट टाइम बहुत ही कम कंप्यूटर हुआ करते थे दुनिया में, बट DOD को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट पड़ी कि इनके पास 2-3 कंप्यूटर थे उस समय और उन्होंने इन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने की कोशिश की और सफल भी रहे और वो पहला नेटवर्क बना था और दिस वाज अ फर्स्ट नेटवर्क इन होल वर्ल्ड। नेम वाज ARPANET। तो ARPANEट वाज द बिगेस्ट स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, मतलब वहीं से इंटरनेट की शुरुआत हो गई और इस नेटवर्क को नाम भी दिया गया, इस नेटवर्क का नाम रखा गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। और उसके बाद इस नेटवर्क पे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कई लोग जुड़े, कई प्रोफेसर्स, कई स्टूडेंट्स, उस पर काम होता गया और ये 1990 के आसपास एक साइंटिस्ट थे टिम बर्नर-ली, जिन्होंने वेब ब्राउज़र को डेवलप किया, इंटरनेट को थोड़ा सा और भी आसान बनाया ताकि वो आप तक पहुंच सके। तो पूरी तरह से डेवलप होकर के इंटरनेट आप तक 1993 में पहुंचा है। अब बात आती है व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र इज़ द स्पेशल काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन एक्सेस वेब पेजेस। जो इंटरनेट के पेजेस होते हैं, दे आर developed and created by using HTML language, Java language and other scripting languages. They can only run on a special kind of software।
This is called web browser. In the year 1993, first graphical browser was found और उसका नाम था Mosaic, MOSIC. तो Mosaic was the first graphical browser of internet. और उसके बाद फिर नेटस्केप नेविगेटर आ गया. उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आज भी आप देख रहे होंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का ब्राउज़र रहता है. तो उसने आके मार्केट को कवर कर लिया. लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर्स यूज़ करने लगे ब्राउज़र्स को, और आज भी इसका यूज़ होता है. जब भी सिक्योर ट्रांजैक्शन की बात आती है तो IETF मीन्स इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ द बेस्ट बिकॉज दे कंटेन varieties of security features. But Google Chrome browser, Mozilla Firefox browser, UC browser are other examples of browser. They are light browsers where your sites can run easily. So many people use this type of browsers also. तो नाउ अब हम बात करते हैं कि हाउ इंटरनेट वर्क. तो इंटरनेट काम कैसे करता है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें इंटरनेट नेटवर्क के कंपोनेंट्स को समझना होगा. जैसे फर्स्ट एक कैटेगरी है www. वर्ल्ड वाइड वेब. तो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द कलेक्शन ऑफ सर्वर कंप्यूटर्स. ऐसे कंप्यूटर्स दे कैन डिलीवर सर्विसेज टू अदर्स. They are called server computer. तो www. is the combination of server computers. तो एक कैटेगरी हो गई www. And other category is remote server. Also you can say that internet service provider. एक ऐसे सर्वर्स जो www. की सर्विस लेकर के आपको प्रोवाइड करते हैं. जैसे इंडिया की बात करें तो वोडाफोन, एयरटेल, BSNL आर द एग्जाम्पल ऑफ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. देयर आर टू कंपोनेंट्स एंड थर्ड इज क्लाइंट होस्ट एंड यूज़र ग्रुप. ऐसे कंप्यूटर्स जो क्लाइंट होस्ट और यूज़र में आते हैं. तो आप इफ़ यू आर इंटरनेट यूज़र यू आर द पार्ट ऑफ क्लाइंट होस्ट एंड यूज़र. तो देयर आर थ्री पार्ट्स www. वर्ल्ड वाइड वेब, collection of web servers, then remote server means internet service provider, and third is client host and user computer. But all three categories of network component interlink to each other by the help of TCP/IP technology. जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि TCP/IP is the very important software technology. This can interconnect computers to each other. बिना इसके हम लोग नेटवर्क बना ही नहीं सकते, चाहे छोटा नेटवर्क हो चाहे बड़ा नेटवर्क हो. तो इन थ्री कैटेगरी servers computers having own TCP/IP, remote server is also having own TCP/IP, and client and host means your computer is also has own TCP/IP, and they also have own TCP/IP address. So TCP/IP address is the computer system generated address, which is the combination of 4 digit and separated by 3 dots like this. For example, 147.132.1.1 means combination of 4 digit and separated by 3 dots are called TCP/IP. When user want to use internet means if you want to use internet, first start your computer and
First, you will perform dial-up connection. The dial-up connection means you will dial connection with your service provider. जिस कंपनी से आप सर्विस ले रहे हैं उस कंपनी से आप डायल अप कनेक्शन करते हैं और आपको वो कंपनी वो रिमोट सर्वर सीधे www.worldwideweb में जो सर्वर रखे हैं वहाँ से जोड़ देती है. सेकेंड स्टेप, व्हेन यू टाइप वेबसाइट एड्रेस ऑन द वेब ब्राउज़र, फॉर एग्जांपल www.yahoo.com, आपने वेबसाइट का एड्रेस लिखा तो आपके कंप्यूटर का TCP/IP उस एड्रेस को रीड करता है इन द फॉर्म ऑफ TCP/IP और फिर वो वहाँ से जाता है www. के नेटवर्क में और वहाँ के नेटवर्क में जो कंप्यूटर प्रेजेंट हैं उनका अपना अपना TCP/IP एड्रेस रहता है और वो सर्च करता है कि हम किस TCP/IP एड्रेस से जुड़ना चाहते हैं. वो आपस में TCP/IP करते हैं, आपको नहीं करना है. और जैसे ही वो सिस्टम मिल जाता है उनको, वो ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं और उस सर्वर का जो TCP/IP रहेगा वो ऑटोमेटिकली इन्वॉक होता है और यहाँ पर TCP जो वर्क करता है सर्वर कंप्यूटर का, ब्रेक वेब पेजेस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट. मतलब आपका TCP/IP उस वेबसाइट एड्रेस को, उस TCP/IP एड्रेस को वर्ल्ड वाइड वेब में ले जाता है. वर्ल्ड वाइड वेब में जैसे ही वो कंप्यूटर मिलता है, वो सर्वर मिल जाता है, लिंक हो जाता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट TCP/IP क्या करेगा, ब्रेक वेब पेजेस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. उन वेब पेजेस को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो डिफरेंट मीडियम से ट्रेवल करके आप तक पहुंच जाए, चाहे वायर्ड मीडियम हो चाहे वायरलेस मीडियम हो. तो पैकेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक बंडल्स ऑफ डेटा, दे कैन इजीली ट्रेवल इन द नेटवर्क. तो आपका TCP/IP आपके मैसेज को वहाँ ले जाएगा, वहाँ के सर्वर के TCP/IP उसको ब्रेक कर देंगे पैकेट्स के फॉर्म में और वो पैकेट में टूट जाएगा और जो IP रहेगा सर्वर का वो क्या करेगा, सेट पाथ. क्योंकि ऑन दैट टाइम एट अ सर्वर 1000 millions पीपल्स वर्क्स टुगेदर. एक ही सर्वर पे हज़ारों लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं. तो उन एक साथ कोई डिमांड कर रहा है, कोई डिमांड कर रहा है, कोई साइट मांग रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो IP विल सेट द पाथ. कि किस कंप्यूटर के एड्रेस से कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसको IP सेट करता है और वो IP सेट कर देता है. तो उसको पता है कि दिस मैसेज इज कम फ्रॉम 147.132.1.1, दिस इज योर कंप्यूटर TCP/IP एड्रेस सपोज दैट. तो वो जानता है और उस TCP/IP एड्रेस पर आपके पैकेट्स को भेजना शुरू कर देता है. फिर आपके सिस्टम में जो TCP/IP है वो क्या करेगा, वो उस मैसेज को रीड करता है, उन पैकेट्स को रीड करता है एंड रीअरेंज पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज अगेन. वो दोबारा उन्हीं वेब पेज में बदल देता है और वही आपको यहाँ पर दिख जाता है कि हमारा साइट खुल गया. फिर नेक्स्ट लिंक पे आप क्लिक करते हैं, फिर वो लिंक का डेटा इसी तरह से आप तक आता है, फिर दिख जाता है. फिर आप अगली लिंक पे क्लिक करते हैं, वीडियोस पे क्लिक करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर वहाँ सर्वर से यहाँ तक आती है और उसको TCP/IP ऑटोमेटिकली अरेंज करता है, ब्रेक करता है. तो सर्वर का जो सर्विस डिलीवरी दे रहा है वो आपके डेटा को टाइम पे ब्रेक करेगा, आप तक भेजेगा और आपके सिस्टम का, आपके कंप्यूटर का TCP/IP उसको रीअरेंज करेगा ताकि आपको उसी फॉर्म में दिख जाए. तो इस तरह से आपका इंटरनेट वर्क करता है.